Hello children. Today we will see the second part of the class synthetic fibers and the plastic. Now see the characteristic of synthetic fibers. Synthetic fibers are light, okay? ये बहुत हल्के होते हैं, strong, काफ़ी strong होते हैं. Then it is elastic. These synthetic fibers are elastic in nature. देन ड्यूरेबल मतलब बहुत दिनों तक ये रह सकते हैं, मतलब फटते नहीं हैं. देन एब्जॉर्ब लेस वाटर. जब ये हम इसे वॉश करते हैं तो इसमें वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, जैसे कॉटन होता है ना, कॉटन एब्जॉर्ब करता है वाटर को, बट सिंथेटिक फाइबर नेवर एब्जॉर्ब द वाटर. देन इट ड्राई फास्ट. अगर इसे वॉश करने के बाद हम इसे सुखाते हैं तो इट कैन ईजीली ड्राई, मतलब जल्दी सूख जाते हैं. ईजी टू मेंटेन एंड लेस एक्सपेंसिव. एक तो इसको मेंटेन करना आसान होता है, और दीज सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव. ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं. मगर जैसे आप जानते हैं कि कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं तो कुछ चीज़ें इसमें नुकसान भी, ड्रॉबैक्स भी होते हैं. तो अब हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स जो है उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है. ये सबसे पहले तो बहुत आसानी से कैच फायर, मतलब आसानी से आग को पकड़ लेते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं. ठीक है, ये बहुत, और ये फाइबर्स जो है, इसके फाइबर्स आसानी से मेल्ट होते हैं. जब इसमें आग लग जाती है तो ये क्या होते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं. एंड व्हेन इट मेल्ट इट स्टिक टू आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है, वी गेट बर्न, हमारे जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसीलिए वाइल वर्किंग इन द किचन, आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वाइल, देखिए सिंथेटिक फाइबर्स के कारण आसानी से आग कैच हो जाती हैं. सो इट इज़ स्ट्रिक्टली वी हैव whenever you work in kitchen or in laboratory, जब भी हम किचन या फिर लेबॉर्ट्री में काम करते हैं तो वी शुड नॉट यूज़ और वेयर द सिंथेटिक फाइबर्स. देन सी द नेक्स्ट लाइन, plastic. Now see, the plastic is also a kind of a synthetic material. Okay, these plastics are a type of a polymer. Polymers means बहुत सारे, जैसे हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो छोटे छोटे यूनिट या छोटे छोटे बीज से बन के एक बड़ी सी नेकलेस तैयार होती है, वैसे ही सेम द प्लास्टिक्स आर प्रिपेयर बाय जॉइनिंग द स्मॉल यूनिट्स and it form the large unit. Okay, again I am repeating, these plastics are formed by joining the small unit, and these small unit join together and form the large unit, and this large unit of the plastic is called the polymers. Okay, up now see, there are the two arrangement of the plastic. You can see in this picture there are the two arrangement of the plastic. One is the linear arrangement and another is a cross-link arrangement. In linear arrangement, the plastic, the small unit of the plastic arrange one after another. But in cross-link arrangement, you can easily see that these small unit arrange itself in crisscross method, or they can arrange one above the another. So this is what called the cross-link arrangement. Now see, the properties of plastic is that we can easily mold the plastic, mold into different shape. Okay, we can easily create the different shape of the plastic. We can roll the plastic, roll भी बना सकते हैं, and we can form the thin sheets. हम पतली सी sheets भी we can prepare from the plastics. Okay, the plastics can be easily prepared, can be easily converted into wires. Okay, and these plastic have the different colors and it can be recycled, so it is used for making many articles. अब recycle means what? अब जैसे कि आपने देखा कि आपके जो पुराने टॉयज़ होते हैं, ओके, वो पुरानी टॉयज़ को आप कबाड़ी वाले को या जंक सेलर को यू कैन सेल इट. ओके, तो ये जंक सेलर क्या करता है, इन प्लास्टिक को ये ले जाता है एक फैक्ट्री में जहाँ पे ये प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है, रिमोल्ड किया जाता है, और रिमोल्ड करके और नई दूसरी चीज़ें बनाई जाती है. So this is what called the recycling. अब here you can see in this picture, this plastic is used to prepare the bottle, buckets, then toys, then shoes is also there. Okay, shoes is prepared, then polythene bag is there, and table and chair is also prepared from these plastics. Now see the types of plastic.
There are the two types of a plastic. One is thermosetting plastic and another is thermoplastic. So first we will see the thermoplastic, about the thermoplastic. Now thermoplastic कैन ईजिली बेंड, हम इसे आसानी से बेंड कर सकते हैं, और जब हम इसे हीट करते हैं, थर्मोप्लास्टिक टाइप के जो प्लास्टिक है, जब इसे हम हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं. ओके, अब थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स आर पॉलीथीन एंड पीवीसी. अब पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉली विनिल क्लोराइड. इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी. ओके, नाउ सी द पॉलीथीन. पॉलीथीन इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ में आते हैं, फोम्स बनाने के लिए यूज़ में आते हैं, और कंटेनर्स बनाने के लिए यूज़ में आते हैं. एंड पीवीसी इज़ यूज फॉर मेकिंग पाइप्स एंड फुटवेयर्स. आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए पॉलीथीन टाइप के प्लास्टिक को हम प्रिपेयर करके टॉयज़, फोम एंड ये डिफरेंट टाइप ऑफ ए कंटेनर्स इज़ देयर. देन polythene is also used for polythene bags. And now see the PVC. You can see this is a pipe, part of the pipes which is used from PVC, prepared from the PVC. And here the footwear is also there. This footwear is prepared from the PVC type of a thermoplastic. Then second type of a plastic is thermosetting plastic. Okay, this thermosetting plastic cannot easily bend. हमने देखा था कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो आसानी से बेंड हो जाते हैं, मगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो आसानी से बेंड नहीं होते हैं, और जब इसे हम हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट भी नहीं होते हैं. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है बेकेलाइन एंड मेलामाइन. द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज बेकेलाइन एंड मेलामाइन. अब नाउ सी द बेकेलाइन. बेकेलाइट जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ओके, इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है. ठीक है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिकल स्विच, आप पिक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रिकल स्विच, जो स्विच बोर्ड है ये बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. फिर आयरन जो है उसके हैंडल्स जो है वो भी बेकेलाइट से बने हुए होते हैं. उसी तरह से जो कुकिंग यूटेंसिल्स है, आप देख रहे हैं कुकर का हैंडल है, और जो पैन का हैंडल है दैट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम द बेकेलाइट. क्योंकि इसको जब हम पैन को या कुकर को हीट करते हैं तो ये जो हैंडल्स है ये हीट नहीं हो पाते, क्योंकि बेकेलाइट की प्रॉपर्टी है कि ये पूरा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ए प्लास्टिक इज़ मेलामाइन. मेलामाइन जो होते हैं, ये जो प्लास्टिक है ये रेजिस्टेंट टू फायर है एंड मोर रेजिस्टेंट टू हीट देन अदर प्लास्टिक. इसको ये फायर का भी कोई असर ज़्यादा नहीं होता है इसमें, और हीट का भी रेजिस्टेंट फायर मतलब यूज़ हीट का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अब आप देखेंगे यहाँ पिक्चर में देखेंगे फायर फाइटर्स जो है, इसने जो ड्रेस पहनी है, दिस ड्रेस इज़ प्रिपेयर फ्रॉम मेलामाइन, है ना. तो मेलामाइन से प्रिपेयर हुई है, तो इसीलिए ये आसानी से ये फायर फाइटर में भी इसको कोई फ़र्क नहीं होता है. अगर आग भी लग जाती है तो अगर ये यूनिफॉर्म पहना है तो इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है. इसलिए जो यूनिफॉर्म होती है फायर फाइटर्स की, दे आर प्रिपेयर फ्रॉम द मेलामाइन. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स, यहाँ पे भी आप यूटेंसिल्स देखेंगे, दीज यूटेंसिल्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द melamine, kitchenwares जो है. And here the different type of floor tiles is there. This floor tiles is also prepared from the melamine. Then see the plastic as a material of choice. Now see, because of the use of the plastic in different areas, we are using the plastic. These plastics are used to prepare the furnitures. These are used to prepare the parts of vehicles, aircraft, spacecraft, etc. Okay, and these the advantages of using this plastic is that this plastic do not react with air and water. So it does not react with air and water, so it does not corrode. जैसे आयरन जो है, लोहा जो है, अगर वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो उसमें जंग लग जाती है, मगर प्लास्टिक में जंग नहीं लगती है. एंड सो बिकॉज ऑफ दिस, इसमें वी यूज़ to store many kind of material in these plastics. Now see, just now I explained you, as the plastic is a poor conductor of heat and electricity, these plastics are used in switches. Then it is used to prepare the handle of iron. It is also used to prepare the handle of the pressure cooker. Okay, and it is also used to prepare the floor tiles. Now see the plastic and the environments. Now see, there are the two types of a material. One is biodegradable material and another is the
non-biodegradable material. Now biodegradable material is what? The material which is easily decomposed by the microorganism. ऐसा मटेरियल जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है तो उसको हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. इसके एग्जांपल्स है वुड है, पेपर है, लेदर्स है, एक्सेट्रा. मगर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है? जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से ब्रेक नहीं करता या डिकम्पोज नहीं कर पाता है. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. अब इसके एग्जांपल्स है. सी द एग्जांपल प्लास्टिक, देन ग्लास and metals. These are the examples of non-biodegradable materials. Now since the plastics take several years to decompose, अब प्लास्टिक को क्या है डिकम्पोज होने के लिए बहुत साल लगते हैं. तो ये जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है. एनवायरनमेंट फ्रेंडली मतलब ये एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वाटर में पॉल्यूशन क्रिएट करता है, सॉइल में पॉल्यूशन क्रिएट करता है. अब जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं, व्हेन वी बर्न द प्लास्टिक, ओके, तो जलाते हैं तो एक रिलीज द पॉइजनस गैसेस इन द एनवायरनमेंट. ये जब हम जलाते हैं तो ये क्या होता है कि एनवायरनमेंट में पॉइजनस गैस रिलीज करते हैं विच कॉज द एयर पॉल्यूशन. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट. टू रिड्यूस द पॉल्यूशन कॉज बाय द प्लास्टिक. अब हमें इस प्लास्टिक को यूज़ करना कम करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना हो. तो फर्स्ट पॉइंट, अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. आप कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें. अब जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं तो यू कैन यूज़ और यू कैन टेक योर ओन कॉटन एंड द जूट बैग इंस्टेड ऑफ आस्किंग द शॉपकीपर फॉर द प्लास्टिक बैग. ओके, देन biodegradable and non-biodegradable waste should be collected in this different container or different dustbin. Now see, you had seen that ये जो अलग अलग डस्टबिन होते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब जैसे आप देखते हैं कि आपके घर के पास जो कचरा उठाने आता है वो एक सूखा कचरा लेता है, एक गीला कचरा बोलता है कि आपसे कहता है कि आप अलग अलग रखिए. तो जो गीला कचरा है वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. जो सूखा कचरा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है. अब सूखा कचरे में क्या क्या आता है? प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाता है. मगर जो बायोडिग्रेडेबल है जैसे वेजिटेबल पिल्स है ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए उसको गीला कचरे पे आप लोग कलेक्ट करते हैं. ओके, देन प्लास्टिक वेस्ट शुड बी रिसाइकल. इनको प्लास्टिक वेस्ट को हम शुड नॉट बी रिसाइकल. प्लास्टिक वेस्ट को हम रिसाइकल नहीं कर सकते, वह एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. इसीलिए वी हैव टू अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. सो डियर चिल्ड्रन, that is for today and this is the end of the chapter. Thank you.